नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता एंड कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइंस में आज खाने के तेल है, जहां पर आत्मनिर्भरता की बातें यहां पर लगातार होती हुई नजर आई हैं, लेकिन किस तरह के इंपोर्ट्स 2025 में रहे और किस तरह के ट्रेंड्स हैं, इस पर होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर ज्यादातर ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस अब काफी नीचे के स्तर यहां पर 2026 के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं। 30s, 40s, 50s, 60s के बीच में यहाँ पर कॉन्वर्सेशन होती हुई नजर आई है। किस तरह के क्यूज हैं, इस पर भी होगी चर्चा। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एंड इमामी एग्रोटेक के सीईओ सुधाकर देसाई। उनसे जानेंगे खाने के तेलों का पूरा इकोनॉमिक्स इंडियन मार्केट्स के लिहाज से। सुधाकर जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। एक पहले रिव्यू या समरी ले लेते हैं 2025 के लिहाज से कि किस तरह के इंपोर्ट्स हमने पिछले सीजन या इस कैलेंडर ईयर में फिलहाल आते हुए देखे हैं और कहाँ खड़ा है इंडिया इन सेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। There are interesting trends on this imports, Manisha ji. For example, 22-23 3 years का अगर हम टाइम फ्रेम में बात करें तो टोटल इंपोर्ट्स इन 22-23 ऑयल ईयर जो अक्टूबर टू सितंबर 23 जो हम बात करते हैं, imports were a whopping 17.8 million tons. That is 178 lakh tons. The breakup was about 10 lakh tons of palm oil, 10 million tons of palm oil, 4.1 million tons of soya, and 3.6 million tons of sun oil. And whereas today, the 24-25th, after 2 years, the imports are still about 16.5. So I think we have done a fantastic job of reduction in imports. That means about 7% imports are reduced compared to 2 years ago. This is point number one. Point number two, the demand normally grows at the rate of 3%. So if you add that also 12%, so literally a 19% downsizing of imports has happened. And in terms of composition also, it is very important see कि our price spreads का बहुत importance रहता है imports में। जैसे पाम ऑयल का जो एक्सपेंसिव होने की वजह से 10 मिलियन टन का इंपोर्ट जो है पाम ऑयल इनका वो 7.9 मिलियन टन हो गया है। एंड सोया because of global issues of soya abundance or the built-up of soya stocks globally, lack of meal demand, तो soya was very competitively priced, जिसकी वजह से soya का जो imports 2 years ago जो 4.1 million tons, 41 lakh tons था, वो इस बार 55 लाख टन 5.5 million tons हो गया है। Sunflower oil has become expensive due to crop issues in Russia and Ukraine. Due to that 3.6 million ton 36 lakh tons का जो सनफ्लावर ऑयल 2 साल पहले आया था, जो 24-25 जो ईयर अभी जो खत्म हुआ है उसमें खाली 3 मिलियन टन 30 लाख टन आया है। So you can see India is very important. And second factor I want to say is that apart from the high correlation with the prices, global prices and the import basket and its composition, second price is that today in the world, so many origins that need Indian markets. Like when you talk about palm oil, originally it used to be Malaysia, Indonesia, but today Thailand has emerged as a major supplier also. There are some oils coming in from Latin American countries. Papua New Guinea is a new supplier to India. So there are so many pockets from where the oil is coming in. Similarly, in soybean oil also, apart from Argentina, Brazil, the new avenues are coming into the picture. Like maybe in future, the US bean oil also will make sense. But otherwise, the Russian soybean oil, Ukrainian soybean oil. So there are many, Turkey, Iraq, the many avenues are showing up for supplies to India. These are the few critical aspects. Basically, the world markets needs Indian market, and Indian market is very much aligned to the global markets. Absolutely. अब यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें और डिमांड की तरफ यहाँ पर जाएं, एक चीज़ तो हमने समझ लिया है कि प्राइस सेंसिटिविटी है और जिस तरह से इंपोर्ट करते हैं वैसी कंजम्पशन है, लेकिन पिछले 3-4 क्वार्टर से ज़्यादातर एफएमसीजी कंपनीज की ये भी चिंता रही है सुधाकर जी कि डिमांड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमने आता हुआ नहीं देखा है। जीएसटी कटौती का कुछ फ़ायदा आप यहाँ पर आते हुए देखते हैं ओवरऑल नंबर्स में? देखिए जीएसटी में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है जरूर इन द ट्रांजिशन पीरियड। दैट्स व्हाई आई थिंक ड्यूरिंग दैट 1 month पीरियड द पीपल हैव डीस्टॉक्ड। दैट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड, दैट शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज अ lack of demand in other oil, other products. I think FMCG will come back in a big way because logically
it makes sense because it has put in that much of disposable income in the hands of the household for buying what they require. But when it comes to edible oil, maybe Honorable Minister's call is also relevant in this context. We have seen in the last 3 months, including the Diwali, that except edible oil, all the demand for all other products, FMCG products, in fact, the overall consumption has grown by 25% during the festivals, but except for edible oil. Maybe ऑयल में the किस तरह की inflation. ग्रोथ है या आप कहेंगे ग्रोथ नहीं है? हाँ नहीं, यहाँ edible oil में degrowth है, but Degrowth है. And balanced by how oil, the much percentage? consumption growth is very good. But also correlate that with the general inflation, which is absolutely nil, मतलब break even. There is no inflation at all, except in edible oil due to global factors. ओके, सुधाकर जी, जैसे आपने कहा कि खाने का तेल कम खाने को कहा है प्रधानमंत्री ने, साथ ही साथ रिफाइंड ऑयल के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, ये अलग कैंपेन है जो हम चलता हुआ देखते रहते हैं. एंड देन एक सर्टन सेगमेंट मार्केट का है जो अब कोल्ड प्रेस की तरफ जाने लगा है, इवन एज उसमें एक प्रीमियम है. बहुत बड़ी मार्केट वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप कहेंगे बहुत सारा डिस्ट्रप्शंस फिलहाल यहाँ पर एडिबल ऑयल एज अ सेगमेंट में है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एडिबल ऑयल में तो जीएसटी का कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज द जीएसटी का चेंज तो हुआ ही नहीं है. एंड सेकंड ऑयल, देन फिगर्स including domestic oil, which I have not told you, but the import trends are showing that the demand is a little on the backstage. And as far as the campaigns are concerned, definitely it is just a few people's making. There is absolutely no truth in all these claims. The refined oils, for example, they are all FSSAI approved. Approved by the committees in the country, the scientific committees. So I would request in general that not to fall for this vested interest agendas of communication that this oil is bad or the refined oil is bad. These are all motivated campaigns, which is a different subject, which is affecting not only edible oils, but many other food and segments. That's a different subject. But so far as cold pressed oil concerned, yes, as the surplus, as the ability to purchase is growing, we have seen in the last 3 years that people are moving towards health oil. The branded and packaged oil is growing in demand. The loose oil जो quality conscious नहीं होता है, तो उसका भी कम होते जा रहा है sales. So these demand trends, the e-commerce is rapidly growing in all segments, including edible oil. So cold pressed oil, or what you say, various types of oils, taste oils, for example, where we are going back to the ages by saying that, the edible oils in raw form are good, which are like groundnut oil, mustard oil. Mustard oil demand has grown actually. So there are various changes in the demand segment. Cold pressed, I think, is only one of the elements, which is very, very small and nascent. Okay. It has got its own demand. In a way, if you see the entire mustard oil that is getting consumed in India, because the process in which it is involved, that is cold water treatment करके जो उसमें जो कोलू जो बोलते हैं, जो milling process जो होता है, it got mechanized, but then the process remained same as ever. So that is also in a way a pure cold pressed oil only, mustard, for example. So I think there are various trends. Cold pressed is not truly big. Olive oil, for example, if you say, is also very insignificant. But yes, imagery wise, in a particular cities and pockets, yes, it is but these are basically outliers and a niche market, I would say. जी, एब्सोल्युटली. ओवरऑल मार्केट शेयर का बहुत स्मॉल परसेंटेज है, लेकिन इन एनी केस अ ग्रोइंग परसेंटेज है. एक फाइनल सवाल सुधाकर जी, और ये प्राइसेस को लेकर है. अगर इस साल के हम प्राइसेस देखें तो जैसे आपने कहा पाम में तेजी आई है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने सोयाबीन 15 महीने के हाइस पर जाते हुए देखा, बट नॉट सो मच इन इंडियन मार्केट्स. एंड देन ऑफ कोर्स मस्टर्ड ने लगातार अपना प्रीमियम बनाए रखा. तो ये साल इन दैट सेंस काफ़ी डिफरेंट रहा इन सेंस ऑफ पिछले कई सालों में जिस तरह से हमने एडिबल ऑयल प्राइसेस को परफॉर्म करता हुआ देखा है. आगे जाकर अगले सीजन को लेकर अब क्या एक्सपेक्टेशन है? Yes, things are getting complex. The palm production suddenly went up, and you found that all the analysts are more bullish than the players and more than the suppliers and the buyers. I think the analysts became very bullish, but the palm production is there. There are tangles about the biodiesel demand, which are the two crucial aspects of the prices. One is the US biodiesel resolve,
अल्टीमेटली कि कितना इंटेंट पे वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि 25-30% ऑफ ग्लोबल एडिबल ऑयल इज गोइंग इनटू बायोडीजल. So today, as we stand, two factors are very important: U.S. biodiesel policy and the Indonesian B40 or 45 or 50 implementation. I think it will take more than 6-7 months for Indonesia to go above B40, 45. B50 is a little bit long way. So these are the complexities. Market I expect to be sideways nearby, but it will touch its bottom. Indian Kharif crops have come. The soybean prices are also looking up thanks to the government effort in taking the prices up. So overall summary is a little bit difficult, but can say that the market is sideways. थोड़ा मतलब अभी market consolidated phase में है, but हो सकता है जैन फेब मार्च में अगर आप पूछेंगे तो उस पीरियड में हमारा पीक ऑफ सीजन भी हो जाएगा मस्टर्ड का, एंड डोमेस्टिक खरीफ क्रॉप्स का प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाएगा, और ग्लोबली थोड़ा मेरे ख्याल से सोया कॉम्प्लेक्स will also go into off season waiting for April. So I would say Jan, Feb, March prices and the demand should be better than now. ऑल राइट, तो प्राइसेस डिमांड बेहतर होने की उम्मीद है आगे जाकर, और जैन टू मार्च का जो क्वार्टर है वो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है एज ऑफ नाउ, जहाँ तक एडिबल ऑयल एज अ सेगमेंट की बात है. सुधाकर देसाई जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. काफ़ी इत्मीनान से काफ़ी सारे सेगमेंट्स हमें वहाँ पर ओवरऑल एडिबल ऑयल के बीच में समझाने के लिए. वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है. जब लौटेंगे तो हमारे साथ वंदना भारती जुड़ेंगी एसएमसी सिक्योरिटी से. ब्रेक के बाद आपका हमारे साथ ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती हैं. वंदना नमस्कार. आपका व्यू जानना चाहेंगे सोने और चांदी पे सबसे पहले, जहां पर एक रिबाउंड देखने को मिला है और वो स्थित होता हुआ नजर आया है. यूएस का जो भी डेटा कल आया वो या तो कमज़ोर था या इनलाइन था. ये ट्रंकेटेड वीक है, आज भी बहुत सारा डेटा है एंड समहाउ सोने चांदी में खरीदारी है. जी मनीषा, और यहाँ पे देखा जाए तो जो स्ट्रेंथ है ये ऑप्शंस भी बता रहा है कि यहाँ पे काफी ज्यादा पोजीशंस बनी है और वो लॉन्ग साइड में बनी है. तो मेरे ख्याल से 4250 अब यहाँ पे नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस आ सकता है, वहां पे जाके रैली थमेगी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर भी है और इस बार अक्टूबर का डेटा नहीं आना है तो मार्केट नर्वस है. और इसने यूक्रेन रशिया के पीस डील को भी यहाँ पे नजरअंदाज किया मार्केट ने, सबसे बड़ी बात है. तो फोकस इनका यहाँ पे पूरा डेटा पे है और फोकस इनका है कि फेड अब आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट कट करता है. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी भी प्राइसेस जो है वो 4200 से 4250 के बीच में यहाँ पे रह सकता है. और नीचे का जो सपोर्ट है वो अभी यहाँ 4100 है, इससे ज्यादा नीचे जाता हुआ दिख नहीं रहा. और ये हॉलीडे शॉर्टन वीक है तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि थर्सडे फ्राइडे जो वोलेटिलिटी होगी वो थोड़ी कम होगी, इस पे ध्यान देना होगा. हमारा बाजार एक बारी 1,28,000 की तरफ जा सकता है मनीषा. वंदना, कच्चे तेल को लेकर यहाँ पर क्या सेंस है, क्योंकि काफ़ी सारी बैंक्स की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं 2026 में क्या होंगे प्राइसेस इसको लेकर. अगर ब्रेंट के लिहाज से ही देखा जाए तो आपको क्या लगता है, क्या रेंज, क्या टारगेट्स रह सकते हैं? जी मनीषा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि थोड़ा सा तो पता है कि सप्लाई साइड यहाँ पे नॉर्मल है और डिमांड यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है. तो सप्लाई डिमांड का तो यहाँ पे बन रहा है कि सरप्लस ही रहना चाहिए. 2026 में भी रिन्यूअल की तरफ हम जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक लोअर बैंड में जाएगा और $55 तक जाएगा नीचे की तरफ ब्रेंट, और अपसाइड जो है वो कहीं ना कहीं $70 के करीब यहाँ पे रुक सकता है. क्योंकि अब इसने पॉजिटिव ट्रिगर्स है, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन होना, सप्लाई साइड डिसरप्शंस आना, इन सबको इसने 22 से देखा है, फिर भी बहुत ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे आई नहीं है क्रूड ऑयल में. तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे जो रैली बनेगी वो लोअर साइड की बनेगी और एक डाउनवर्ड चैनल में ही यहाँ पे ट्रेड होना चाहिए. तो 55 से $70 की रेंज यहाँ पर बन सकती है ब्रेंट के लिए अगले साल के लिहाज से. वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, उन दोनों स्ट्रैटेजीज के लिए भी. और इसके साथ ही अब आपको ले चलते हैं हमारी गिफ्ट सिटी के एमडी एंड सीईओ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की ओर. हमारे साथ संजय कौल जुड़े हैं जो एमडी हैं गिफ्ट सिटी से. संजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब तक की गिफ्ट सिटी की स्टोरी आप कैसे देखते हैं. हमने यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ आते हुए देखी है 2021 से 2025 तक. जिस तरह के नंबर्स, जिस तरह से बड़े नाम, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फंड्स, एक्सचेंजेस में यहाँ पर हमने काम होता हुआ देखा है, उस सबको कैसे समराइज करेंगे? आप अगर देखें गिफ्ट सिटी की जब प्लानिंग की गई काफ़ी साल पहले थे, करीब जब माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, उस वक्त गिफ्ट सिटी की कल्पना रची गई कि इस तरह का एक सेंटर हमारे यहाँ होना चाहिए जो सिंगापुर,
हांगकांग या दुबई जैसा होना चाहिए। 2021 में हमारे रेगुलेशंस बने, फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। 21 में करीबन 100 के आसपास, 21-22 वाले जो फाइनेंशियल ईयर था, करीब 100 के आसपास ही कंपनियां यहाँ पे थीं। आज की तारीख में 1000, 24, 24 अगर पिछले सितंबर के एंड में देखें 1024 एंटिटीज़ हैं। इनका कुल मिला के जो टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में था करीब 110 बिलियन यूएस डॉलर था। पिछले 3 महीनों में 105 एंटिटीज़ रजिस्टर हुई हैं और ये बढ़ता जा रहा है। तो इससे आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि किस तरह से ग्रो हो रहा है। 100 21-22 में और इस वक्त 3 महीने में 100 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है और ये बढ़ेगा। अगर हम ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर देखें तो मैं कई सालों के बाद आज गिफ्ट सिटी में आई हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ और काफ़ी ज़्यादा बसलिंग एक्टिविटी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। जब मैं आई थी तो शायद 3-4 बिल्डिंग्स थी और आज यहाँ पर काफ़ी सारी हैं और काफ़ी सारी बन भी रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ है यहाँ पर और दूसरी चीज़ यहाँ पर है जिस तरह से इसे ESG या सस्टेनेबिलिटी को इसको वीव इन करके बनाया गया है। देखिए, हमारा जो ओरिजिनल प्लानिंग है उसमें 62 मिलियन स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्टेड एरिया का प्लानिंग है, जिसमें कमर्शियल भी है और सोशल जैसे कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं। इस वक्त 21 मिलियन स्क्वायर फीट का हमने अप्रूवल्स हम दे चुके हैं। करीबन 5 मिलियन स्क्वायर फीट बन चुके हैं। जो आप बिल्डिंगें देख रही हैं वो बिल्डिंग जो बन चुकी हैं। सस्टेनेबली कहा जाए, हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे सब LED कंप्लायंट है। ये मैंडेटरी है कि आप ये नॉर्म्स ही फॉलो करेंगे कि सस्टेनेबल हो, एनर्जी कंजम्पशन हुआ या किस तरह से आप स्पेसेस को आप डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ बहुत स्ट्रिंजेंट है। हम इसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ते। इस तरह का प्लानिंग और इस तरह के स्टैंडर्ड्स इतने लार्ज एरिया में हमारे ख्याल से कहीं नहीं है। नॉर्मली होता क्या है कि एक बिल्डिंग आप एक स्टैंडर्ड से बना दिया आपने और आप कहते हैं कि हम LED कंप्लायंट हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। और जो काफ़ी जगह जो बिज़नेस भी हो रहा है, जैसे हमारे गोल्ड एक्सचेंज में जो हम गोल्ड भी लाते हैं वो भी हमने वो निश्चित किया कि ESG कंप्लायंट है। तो केवल कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में ही नहीं, जिस तरह से बिज़नेस हो रहा है उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ESG कंप्लायंट हो, सस्टेनेबल हो। ये हमारे ख्याल से कहीं और नहीं हो रहा है इस लेवल पे। यहाँ से अब आगे का विजन कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जैसे आपने कहा गोल्ड में है या फिर एक्सचेंजेस है, और जैसे पहले भी आपने कहा कि बड़े बड़े नाम जो बैंक्स हैं, जो फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ के हैं, वो यहाँ पर आए हैं और नाम और बड़े लोग यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं। जिस तरह का वॉल्यूम, बिजनेस, फाइनेंशियल्स फिलहाल गिफ्ट सिटी के हैं, किस तरह से आप इसे 2026 में ग्रो होता हुआ देखेंगे? जैसे मैंने एक नंबर बताया कि पिछले क्वार्टर में 105 एंटिटीज़ रजिस्टर हुई हैं। ये बढ़ेंगी ही, है ना। अगर हम एक कर्व देखें तो ये ऊपर ही जाएगा और ग्रोथ रेट पिछले साल से ज़्यादा अच्छा होगा। इसके वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। इसके 2 कारण हैं। हम और रेगुलेटर जब हम बाहर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो जो इंटरेस्ट गिफ्ट सिटी की तरफ आ रहा है फिनोमिनल है। हर कोई चाहता है कि एक तो जानने की हर कोई गिफ्ट सिटी क्या है कहीं ना कहीं उनको पता है। वो जानना चाहते हैं क्या है। पिछले हफ्ते दुबई फाइनेंशियल सेंटर से वहाँ पे किसी से मैं बात कर रहा था जो काफ़ी ऊंचे पोजीशन पे थे, वो है रादर। उनका कहना है कि हमारा कंपटीशन हम गिफ्ट सिटी को ही देखते हैं। तो हम समझते कि दिस स्टेटमेंट जो वहाँ का कोई सीनियर पोजीशन पे है, दैट शोज़ कि हम मार्केट में सीरियसली हम आ चुके हैं। Mongia